welcome in the class. Students, as we are studying unit number 5, today I am here with a new lecture, but before going to today's topic, we will discuss some points related to today's topic. Students, do you know what is matter? Matter is anything that occupies space and has some mass. In a universe, everything is made up of matter. Why is it? Because in a universe, everything having some space and which occupies some mass. So we can say everything in the universe is made up of matter. The food we eat is a matter. The air we breathe is a matter. The food we eat is a matter. The water we drink is a matter. Everything in a universe, even a man himself, is a matter because it occupies some space and having some mass. Now move towards the states of matter. Students, there are 3 states of matter, that is solid, liquid and third one state is gas. There are 3 states: solid state, liquid state and third one is the gaseous state. In solid state, the particles in a molecule are very closely packed. Molecule cannot move from one place to another place. They are very closely packed. For example, ice cube. The second one state is liquid state, in which the particles of a molecule is loosely packed. They can flow. For example, milk, or we can say water, which can flow from one place to another. The third one state is gaseous state. The state in which molecules are very much loosely packed. In a gaseous state, the intermolecular distance is very much between the particles in a molecule and there are weak intermolecular forces. So on the basis of this division of a particle, how we can define gaseous state? We can define gaseous state as the state of matter that has no specific shape and no specific volume is known as gaseous state. The material having the loosely packed particles is known as gaseous state, and gaseous state is the third state of matter. Gaseous state, as the molecule are as a distance, there is a huge distance between the gaseous molecule. So as the distance is larger, the force of attraction between the molecule are very much smaller. So we can say in a gaseous state there is low intermolecular forces and high intermolecular distance. On the basis of this all information, today we will discuss the properties of gaseous state, and we will discuss 2 properties of gaseous state, that is diffusion and effusion. First of all, we will discuss the term diffusion. Students, what is diffusion? In a diffusion, we will talk about the movement of molecule. Students, movement of molecule के बारे में बात करें, इससे पहले हम जनरल टर्म में बात करते हैं कि यूनिवर्स में हर जो रिएक्शन हो रहा है, आपके पास जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं वाटर किसी हायर सरफेस पे है, वो तो हायर से लोअर की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करता है. इसी तरह अगर हीट वाली बॉडी है, 2 बॉडीज आपस में, जैसे आप देखते हैं कि अपने हाथ जो हायर रीजन वाली एनर्जी या हीट है जिस हाथ में, जो हाथ ज़्यादा गर्म है, उस हाथ से एनर्जी ट्रांसफर होती है जिस रीजन में हीट कम होती है. ठीक है, हर सिस्टम यूनिवर्स में हर सिस्टम ऐसा है कि जहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो चीज़ें मूव करना शुरू होती हैं. तो डिफ्यूजन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें जो है मूवमेंट होती है किसकी, गेशियस मॉलिक्यूल की. तो डिफ्यूजन वैसे कि गेशियस मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी है. इसमें हम बात करेंगे कि मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कि जहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो मूव करेंगे किसी दूसरे रीजन पे. तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ऐसी जहाँ पे किसी गैस के मॉलिक्यूल की अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो मूव करेंगे ऐसे रीजन पे जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम होगी. सो वी कैन से the movement of molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration, or we can say the molecule tend to move from the
region of from the crowded region to the less crowded region. On the basis of this all information, how we can define diffusion? We can define diffusion as the spontaneous mixing up of molecules of different gases. Mixing up of molecule of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is called diffusion. Students, definition में जो है आपके पास यहाँ कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है spontaneous mixing up. Next one is to form a homogeneous mixture, and the third one is random motion. So first of all, we will discuss one by one three terms. The first one term is spontaneous mixing. Students, यूनिवर्स में दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं. एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और दूसरा प्रोसेस हमारे पास आता है नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. पहले हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है. वो प्रोसेस जिसको करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी फंक्शन जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हेल्प लेनी पड़ती है या फोर्स लेनी पड़ती है, तो वो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क है जिसमें हमारी अपनी विल पावर लगती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर से हम जो है स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, विल पावर यूज़ करनी पड़ती है या फिर हम एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करते हैं. अब मैं ये बोर्ड पे लिख रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मार्कर खुद नहीं लिख रहा, बल्कि इसको भी लिखने के लिए सम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है. जिस वजह से हम कहते हैं कि ऐसे वर्क, फॉर एग्जांपल, अगर वाटर जो है वो हायर सरफेस से फ्लो कर रहा है लोअर सरफेस की तरफ, तो वो तो फ्लो कर रहा है, लेकिन जब हम लोअर सरफेस से हायर सरफेस पे वाटर को लेके जा रहे हैं तो ये खुद ब खुद नहीं जा रहा, बल्कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें सम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है. और इस टाइप की जो भी फंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शंस. द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस फंक्शंस. या स्पॉन्टेनियस क्या होता है? वो वर्क जो कि यूनिवर्स में इटसेल्फ परफॉर्म हो रहा हो ऑटोमेटिकली, जिसको करने के लिए हमें किसी किस्म की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो. फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लो कर रहा है हायर सरफेस से लोअर सरफेस पे, तो क्यों कर रहा है? बिकॉज के इसने जो है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हायर सरफेस से लोअर सरफेस पे आना है. दूसरी बात हम कहते हैं, अगर हीट जो है वो हार्ड बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जा रही है तो ये हम बाय फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि ये स्पॉन्टेनियसली हो रही है, खुद ब खुद हो रही है. तो ऐसे फंक्शंस जो यूनिवर्स में खुद ब खुद परफॉर्म हो रही है, जिनको परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म की एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस फंक्शन. व्हाट इज स्पॉन्टेनियस फंक्शंस आर spontaneous? Spontaneous functions are those functions which are performed itself, which do not require any external force of energy to perform. For example, water flows from higher surface to lower surface just because of itself to minimize their energy. Or we can say the heat is run from the rod from the surface of from the one end to another end in a rod. It is performed spontaneously. Or we can say heat transfer from one object to another object, or from the hard body to cold body. This function is performed by itself, and these functions are known as spontaneous functions. Now, what is non-spontaneous functions? Students, non-spontaneous functions are those functions which require some amount of external force, which require some energy to perform. That function which require energy to perform is known as non-spontaneous functions. For example, water. When we bring water from the lower surface to higher surface, it requires energy. For example, when I am writing here, then it requires energy to perform. These all type of functions are known as non-spontaneous functions. Move towards the spontaneous mixing. Students, diffusion के अंदर spontaneous mixing कैसे होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं जब, तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में स्पॉन्टेनियसली एकदम से ऑटोमेटिकली एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं. ठीक है.
अब जब ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते तो बाय फोर्स इनको कोलाइड नहीं कराया जाता, बल्कि ये मालिक्यूल्स क्या है, इटसेल्फ गैस के मालिक्यूल हमेशा जो है वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, हर टाइम कॉन्टिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। ये मालिक्यूल्स इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, एंटी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहे होते हैं। तो ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जब टचअप होंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली होते हैं। सो वी कैन से द गैस मालिक्यूल विल स्पॉन्टेनियसली मिक्स विद वन अनदर। द नेक्स्ट वन टर्म इज होमोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? अब वर्ड से ही डिराइव है। होमो मीन सेम, जीनियस मीन कंपोजिशन, ठीक है। होमोजीनियस द मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ऐसे मिक्सचर जिनमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है इनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। तो गैस के मालिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये होमोजीनियसली मिक्स अप होंगे, ठीक है। इसके जब आपके पास ये इनकी कोलाइजन होती है तो कोलाइजन के बाद इन मालिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि ये मालिक्यूल जो है वो गैस ए का है, ये गैस ए का है, या दूसरा ये गैस बी से रिलेटेड है। हम इस तरह से इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी मीन ऑफ फिजिकल और केमिकल सेपरेशन। गैस मालिक्यूल रैंडमली कोलाइड करते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? The mixture having the same composition throughout. So gas molecule, when gas molecule will collide with each other, they will form homogeneous mixture. One point is random motion. Now what is random motion? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये रैंडमली मूव करता है, मीन कि कोई विदाउट एनी सीक्वेंस, कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड की डायरेक्शन यूँ है, मीन्स कि डायरेक्शन लेस मोशन। ऐसी मोशन गैस के मॉलिक्यूल शो करेंगे जो कि डायरेक्शन लेस होगी। किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं या गैस फिलअप हुई होती है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो मुसलसल कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं, और जैसे ये कंटिन्यूस मोशन के अंदर होंगे तो इनके दरमियान रैंडमली जो है वो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। मीन्स व्हाट इज रैंडम मोशन? द मोशन हैविंग नो प्रॉपर सीक्वेंस और नो रेगुलर इंटरवल, they will move from in any direction, they can move in any direction। कि हम कह सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल जो मूवमेंट शो कर रहे हैं वो रैंडम है, ठीक है, यानी कि विदाउट एनी सीक्वेंस। ऑन द बेस ऑफ दिस आर 3 points how we can define diffusion. We can define diffusion as the spontaneous mixing up of molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is known as the term diffusion. Students, diffusion is a movement of molecule, but how can molecule move? Molecule will move randomly and they will mix with each other spontaneously and they will form homogeneous mixture. So at the all, how we can define diffusion? The spontaneous mixing up of molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is called diffusion. Now move towards the example of diffusion. How we will explain diffusion with a specific example. Students, हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देंगे वो है परफ्यूम की। परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम। स्टूडेंट, परफ्यूम आपके पास जो है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। परफ्यूम जो है वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब परफ्यूम के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि हम यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ कि इस तरह से परफ्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, जहाँ पे लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होती है। इसके मुकाबले में जब हम रूम को जो है इस परफ्यूम को किसी भी रूम के अंदर स्प्रे करते हैं तो रूम में होती है एक और गैस मौजूद जो कि हमारे पास है एयर। एयर जो है इन द फॉर्म ऑफ गैस आपके रूम में मौजूद होती है। अब एयर की कंपोजिशन में 2 मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो हम किसी भी रूम के, फॉर एग्जांपल ये रूम है, इसके कॉर्नर में जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि यहाँ से रैंडमली मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव करेंगे पूरे रूम के अंदर।
और यहाँ रूम के अंदर जो है और प्रीवियसली जो है गैस प्रेजेंट है जो कि हमारे पास है एयर के अंदर कुछ अमाउंट है वो नाइट्रोजन की और कुछ आपके पास मैच जो 2 गैसेस प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। अब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, रैंडमली कोलाइड करेंगे और एज अ रिजल्ट होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि परफ्यूम। जब एक रूम में आप रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे के पूरे रूम से, इंटायर रूम से आपको जो है वो स्मेल फील होती है, ठीक है, फील हो रहा होता है कि परफ्यूम जो है वो स्प्रे किया हुआ है। तो वो इसीलिए कि परफ्यूम के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली होल रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाती है, जिसके लिए हम कहेंगे कि परफ्यूम जो है वो डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल perfume is the example of diffusion. When a gas having characteristics or is released in a one corner of the room, soon its smell will spread in whole room. Similarly, a volatile liquid like perfume evaporate and spread in the air in a very short time. The rate of diffusion of gas varies from the gas to gas, and with both gases, the molecule of both gases will collide with each other and they will form homogeneous mixture and they will spread in a whole room. The next one property of gas is effusion. What is effusion? Effusion is similar to the term of diffusion, but there is some little bit differences in between diffusion and effusion. Students, हम diffusion की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने भी कहा diffusion में कि मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो सेम वे में इफ्यूजन के अंदर भी मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जहाँ जिस रीजन में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हायर होगी, जहाँ क्राउडेड रीजन होगा, वो क्राउडेड रीजन से लेस क्राउडेड रीजन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू होंगे। बट डिफरेंस क्या है, अगर दोनों ही टर्म्स में मॉलिक्यूल्स ने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो फिर इफ्यूजन रखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास डिफ्यूजन भी तो आ सकता था। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में सिमिलरिटी, एक डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास जो है मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, यहाँ पर एक ये क्राउडेड रीजन है, यहाँ से मॉलिक्यूल जाएंगे लेस क्राउडेड रीजन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो होल होगा। इफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो है वो 1 बाय 1 एस्केप करेंगे, एक रीजन से पहले एक मॉलिक्यूल जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 1 बाय 1 मॉलिक्यूल जो वो एस्केप करते हैं। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन में रैंडम मोशन होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो वो एक साथ रैंडमली कोलाइड कर रहे होते हैं, पूरे रूम में स्प्रेड कर जाते हैं, पूरे एरिया में स्प्रेड कर जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इफ्यूजन मॉलिक्यूल विल बी स्प्रेड बाय अ होल and they will escape 1 by 1. On the basis of this all information, how we can define effusion? We can define the term effusion as the escape of molecule in the gaseous state 1 by 1 without collision through a hole is called effusion. Students, here is a term, gas molecule will release 1 by 1. स्टूडेंट्स, एक टर्म हम यूज़ करेंगे कि 1 बाय 1, तो यहाँ पर हम किसी भी सरफेस को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हायर कंसंट्रेशन की जो सरफेस है वो हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे एक थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल होगा। इस होल के जरिए जब मॉलिक्यूल विदाउट कोलाइडिंग, एक दूसरे के साथ कोलाइड किए बगैर, टकराए बगैर, एक एक करके मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एस्केप होगा, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। प्रोसेस वही है कि मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, बट दे विल एस्केप 1 by 1. So how we can define diffusion? The escape of molecule in the gaseous state 1 by 1 without collision through a hole is called effusion. On the basis of this all information, how we can define effusion? We can define the term effusion as the escape of molecule in the gaseous state 1 by 1 without collision through a hole is called effusion. Students, here is a term, gas molecule will release 1 by 1. Students, एक टर्म हम यूज करेंगे कि 1 by 1, तो यहाँ पर हम किसी भी सरफेस को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर कंसंट्रेशन की जो सरफेस है
वो हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे मालिक्यूल एस्केप करेंगे एक थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल होगा। इस होल के जरिए जब मालिक्यूल विदाउट कोलाइडिंग, एक दूसरे के साथ कोलाइड किए बगैर, टकराए बगैर, एक एक करके मालिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एस्केप होगा, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। प्रोसेस वही है कि मालिक्यूल विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी lower concentration, but they will escape one by one. So how we can define diffusion? The escape of molecule in the gaseous state one by one without colliding through a hole is called diffusion. Now move towards the example of diffusion. सबसे पहले हम एग्जाम्पल में बात करेंगे diffusion of onion smell. स्टूडेंट्स, ऑनियन की हम बात करते हैं कि अगर आप ऑनियन को किसी भी शॉपर बैग के अंदर सील करके रखते हैं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि ऑनियन की जो बैग है, उस बैग की सरफेस पे आपको छोटे छोटे ऐसे वाटर के ड्रॉप्स नजर आएंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट भी करना है कि आपने ऑनियन को एक शॉपर बैग में डाल के सील कर लेना है। अब सील जो शॉपर बैग है, इसको आप देखें तो इसकी सरफेस पे इस तरह से छोटे छोटे वाटर के आपको ड्रॉप नजर आएंगे, बट इन एक्चुअल ये ड्रॉप्स जो है क्या है, यहाँ ऑनियन में से जो है इसका सीबम्स है या जो वाटर है वो एस्केप हो रहे हैं वन बाय वन। इसकी सरफेस से वन बाय वन जो है वो मालिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, गैसियस मालिक्यूल्स, जो कि आके इस सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। कैसे इफ्यूजन का प्रोसेस हुआ कि मालिक्यूल ने एस्केप किया वन बाय वन, एक मालिक्यूल आ रहा है, फिर दूसरा मालिक्यूल आ रहा है, जो कि एस्केप कर रहे हैं वन बाय वन, ना कि ये रैंडम मोशन शो कर रहे हैं और ना कि ये जो है एकदम से होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है। ये वन बाय वन जो है वो ऑनियन से एस्केप हो रही है। We have an example of onion. When you seal onion in a bag, you can smell the onion even the bag is tightly sealed. Why is it? Because the onion molecule will escape one by one, and here is a process involved which is known as diffusion. Move towards the summing up. I will conclude my lecture. First of all, we have discussed about the matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. Matter exists in all three states. That is, the first one state is solid, second one is liquid, and third one is gas. Matter can exist in all three states: solid, liquid, and gas. Now we will talk about the gaseous state. Gaseous state is the third state of matter in which gas molecule have no specific shape and no specific volume is known as gaseous state. Or we can say the state of matter having large intermolecular distance between the molecule and lower intermolecular forces. Or we can say the state of matter in which molecules are loosely packed is known as gaseous state. Now this next one term is diffusion. So we can define diffusion as the spontaneous mixing up of molecular different gases to form a homogeneous mixture by random motion and colliding is called diffusion. For example, water flows from higher concentration to the lower concentration, or we can say perfume spread in a whole room. Students, the next one term is effusion. How we can define effusion? The term effusion is defined as the escape of molecule in a gaseous state one by one. Escape of molecule one by one without colliding through a hole is called effusion. And the example of effusion are smell of onion spread in a room or in a tight bag. Now students, we will move towards the home assignment. Students, here on page number 124, the topic diffusion will start it from page number 124 and at page number 125. Property is effusion, and effusion is on page number 125. Topic effusion is started from page number 125 to 120 and end on 126. You have to write on neat notebook with proper paper presentation, as we have discussed in a previous lecture about the paper presentation. So you have to write with proper paper presentation.